Namaskar everyone, respected dignitaries, teachers, students, and all yoga enthusiasts. A very warm welcome to the International Yoga Day celebration at Wayground World School. Today, we have all gathered here to celebrate International Yoga Day with great enthusiasm and spirit. Before we begin, I have a question for all of you. How many of us have ever said, I'm tired, I'm stressed, I don't have enough time, or perhaps I just need a break? Well, today, yoga has an answer to all of these. Yoga doesn't ask us to run faster, it doesn't ask us to become stronger than others. It simply teaches us to pause, to breathe, and to reconnect with ourselves.
Let us begin this beautiful morning with a sacred sloka. Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Sehviryam Karvavare Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishravare. May we learn together, grow together, and shine together. What a beautiful message, isn't it? Because every day at Vedam World School, that is exactly what we strive to do. So let us embark on this journey of wellness, positivity, and inner peace. Every successful event is graced by the presence of visionary leaders whose guidance inspires us to achieve excellence. It is my privilege to warmly welcome our esteemed dignitaries, our venerated Senior Vice President, Mr. Shiv Pandey sir, our esteemed AGM Academics, Ms. Rishika Sharma, our dynamic beloved Principal Ma'am, Ms. Shameem Singh. Your presence adds immense value and inspiration to this celebration. Now, I request everyone to kindly stand and pay their respects to our national song, Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Shujala, Suparam, Malaya Shikara. शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Thank you. Dear all, we spend hours charging our phones. But how often do we recharge ourselves? A low battery notification on a mobile phone worries us instantly. But when our minds are exhausted, our hearts are anxious, and our bodies are tired, we often ignore the signals. Yoga teaches us to listen to our breath, to listen to our body, to listen to our inner voice. In a world filled with noise, yoga offers silence. In a world filled with competition, yoga offers balance. In a world filled with stress, yoga offers peace. Our ancient sages beautifully expressed this wisdom. Yoga karma sukaushlam. Yoga brings excellence in every action. Yoga helps us improve concentration and memory, reduce stress and anxiety, increase flexibility and strength, and build self-discipline and confidence. As students, yoga teaches us focus. As teachers, it teaches patience. And as human beings, it teaches clarity. Therefore, taking care of our body and mind through yoga is not just a choice, it is our responsibility. And now comes the most awaited part of today's celebration,
the yoga session. Before we begin, I request everyone to maintain discipline, follow the instructor carefully, perform each asana according to your comfort level, focus on your breathing and enjoy every moment. Remember, yoga is not a competition. As someone wisely said, the only person you should try to be better than the person you were yesterday. So let us leave behind all distractions, take a deep breath, and connect with ourselves. We'll begin with Om chanting. I request everyone to mute your mics. केवल सुखासन, पद्मासन या जिस भी अवस्था में मौन आरामदायक या सहज महसूस हो, बैठ जाएं। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, हथेलियों को घुटनों पर रखें, आंखें धीरे से बंद कर लें। अब एक गहरी श्वास भीतर लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः श्वास भीतर लें और श्वास बाहर छोड़ें। अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करें। अब हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। एक गहरी श्वास भीतर लें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। एक बार फिर से गहरी श्वास लें और धीरे धीरे स्थिर करें। अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करें। अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें। गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे भीतर। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का
करेंगे। दाहिने हाथ को नासिका मुद्रा में रखें। अब बाईं नासिका से श्वास भीतर ले। इसके बाद दोनों नासिकाओं को थोड़ी देर के लिए बंद रखें। के उपरांत दाहिनी नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। दाहिनी नासिका से श्वास अंदर ले। बाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ध्यान रखें, आप जिस भी नासिका से श्वास ले रहे हैं और जिस नासिका से आप श्वास छोड़ रहे हैं, पुनः उसी नासिका से आपको श्वास को ग्रहण करना है। इस प्राणायाम के लाभ इस प्रकार हैं। मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है। It reduces stress and hypertension. It enhances concentration and memory. It balances the nervous system. मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी प्राप्त होती है। साधन को करते समय आपको अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित रखना है। प्रयास ये करें कि जब आप एक्सहेल करें तो बहुत ही ज्यादा जोर से ना करें, आराम से धीरे धीरे एक्सहेल करें और इनहेल भी धीरे धीरे करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। श्वास अंदर लेते समय अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करें। While exhale slowly. Do not rush. Focus on your rib cage expanding. अब धीरे धीरे सामान्य श्वास लें और दोनों हाथों को विश्राम में। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। अगला स्टेप है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 12 चरणों का एक संपूर्ण योग क्रम है, जिसमें शरीर की अधिकांश मांसपेशियां एवं जोड़ सक्रिय होते हैं। प्रत्येक आसन के साथ श्वास का समन्वय अर्थात मेलजोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सावधानी मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को मिलाकर हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें।
सामान्य रूप से श्वास लेते हैं। यह आसन मन को स्थिर करता है, एकाग्रता विकसित करता है और अभ्यास के लिए मानसिक तैयारी करता है। इसका अगला चरण है हस्तांगासन। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों और गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और हल्का पीछे। आप अपनी सहजता के अनुसार पीछे झुक सकते हैं। इसके लाभ इस प्रकार है। ये चेस्ट और लंग्स को एक्सपेंशन में हेल्प करता है और शोल्डर मोबिलिटी को बढ़ाता है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। सूर्य नमस्कार का अगला चरण बद्धहस्तासन। अब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपने पैरों को छोड़ने का प्रयास करें। ये पॉस्चर पीठ और पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है और हमारे ब्रेन की तरफ हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है और इस आसन में रहने से हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी कम रहती है। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ऊपर अगला चरण अश्व संचालन। धीरे धीरे श्वास लेते हुए बायां पैर पीछे ले जाए। ध्यान रखें दायां मुड़ना मुड़ा है और आपकी दृष्टि ऊपर की ओर है। यह आसन मूलों एवं जांघ की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और संतुलन को विकसित करता है। अगला चरण पर्वतासन। दायां पैर पीछे ले जाकर अपने शरीर को उल्टे वी के आकार में लाएं। यह आसन फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करता है, कंधों और हाथों को शक्ति प्रदान करता है। अब अगला चरण अष्टांग नमस्कार। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने, छाती एवं ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। इस अवस्था को हम अष्टांग नमस्कार कहते हैं। ये हाथों को और चेस्ट को मजबूत बनाता है और ये हमें बॉडी कंट्रोल बढ़ाने को। अगला चरण भुजंगासन।
जाता है। अगला चरण है पर्वतासन। पुनः अपने आप को उल्टे V के आकार में लाएं। अपने शरीर में अपनी एड़ियों जमीन में सटा कर अगला चरण अश्व संचालन। इसके लिए अब अपना बायां पैर आगे लाएं। अगला चरण है बद्धस्तासन। दूसरा पैर आगे लाकर आगे की ओर धीरे धीरे श्वास छोड़ें। This posture helps enhancing the mobility of joints and flexibility of body. अगला चरण हस्तोत्तानासन। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर अब वापस प्रणामासन लौट आए। अगला चरण हस्तोत्तानासन। दोनों हाथों और गर्दन को धीमे धीमे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। हल्का सा पीछे झुकें। श्वास छोड़ते हुए आगे आए और धीरे धीरे आगे की ओर झुके। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठे। अपना बायां पैर पीछे ले जाएं और दायां हाथ मोड़ लें। अब दायां पैर पीछे ले जाकर शरीर को उल्टे V के आकार में लेके आए। अब अष्टांग नमस्कार के लिए घुटने, छाती, कोहनी को जमीन से स्पर्श करें। आप धीरे धीरे सांस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं। अब पुनः अपने शरीर को उल्टे V के आकार में लेकर आए। करते हुए आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, अपने आप को अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है। कीप ब्रीथिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, और इसे आपको अपनी स्पीड पे करना है। अब बायां पैर आगे लाएं और अश्व संचालन शुरू करें। अब दूसरा पैर आगे लाकर आगे की ओर झुके।
Vatsasana, and what is your comfort level? अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा में लौट आए। अब दोनों हाथों और गर्दन को धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकें। अब सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठें। अपना बायां पैर पीछे ले जाएं। दाएं घुटने को मोड़ लें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं घुटने को पीछे ले जाएं और अपने शरीर को उल्टे वी के आकार में लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए भूमि पर लेट जाएं और अपने घुटने, छाती एवं थोड़ी को भूमि से बंद करें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं। अब पुनः अपने शरीर को उल्टे वी के आकार में ले आएं। इस आसन में आपको अपनी एड़ियों को जमीन से स्पर्श करा कर रखना। अब अपना बायां पैर आगे लाएं। अब अपना दूसरा पैर आगे लाएं और पद्मासन आसन की मुद्रा में रखें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर उठें और पीछे की ओर थोड़ा सा झुकें। अब नमस्कार की मुद्रा में लौट आएं। श्वास और गति का समन्वय बनाए रखें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। अपने शरीर की क्षमता का सम्मान करें। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर को लचीलापन, शक्ति, सहनशीलता तथा हृदय एवं श्वसन कार्यक्षमता में सुधार होता है। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण योगासन का अभ्यास करेंगे। पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को
धीमे धीमे सांस लेंगे और अपनी आंखों को ऊपर की ओर रखें। धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाएं और कुछ देर इस अवस्था में अपने आप को होल्ड करें। इस आसन के लाभ हैं शरीर की मुद्रा में सुधार, रीढ़ को मजबूती, संतुलन एवं आत्मविश्वास में वृद्धि, पैरों की शक्ति में वृद्धि। अब अगला आसन है वृक्षासन। एक पैर पर संतुलन बनाकर दूसरे पैर के पंजे को अपनी जांघ पर रखें व हाथों को सिर के ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा करें और इस पोजीशन में अपने आप को थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इस आसन के लाभ it enhances concentration, it develops balancing path, पैरों एवं टखनों को मजबूती मिलती, मानसिक स्थिरता बढ़ती। अब धीरे धीरे बैठने की स्थिति में आ जाए। धीरे धीरे बैठ जाए। अब अपने घुटनों को मोड़ लें और घुटनों को मोड़ करके अपनी एड़ियों पे बैठ जाए। अपनी हड्डी को सीधा रखें व हथेलियों को घुटनों पर रखें। इस आसन को हम वज्रासन कहते हैं। वज्रासन हमारी पाचन शक्ति में सुधार करता है और हमारी बॉडी एसिडिटी को कम करता है और ये ध्यान और मानसिक शांति के लिए बहुत उपयुक्त आसन में से एक है। यह आसन हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इस आसन से हमारा डाइजेशन अगला आसन है मंडूक आसन। वज्रासन की अवस्था में बैठे रहिए। दोनों हथेलियों से मुट्ठी बनाकर नाभि के पास रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको आगे की ओर उठना है और थोड़ी देर इसकी अवस्था है। ऊपर आने समय धीरे धीरे सांस लेनी है। यह आसन हमारे पैंक्रियास को सक्रिय करता है और हमारी डायबिटीज को मैनेज करने में हेल्प करता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें बैक पेन की राहत देता है। अब अगले आसन के लिए एक टेबल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखें।
अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर यह आसन जलासन ये ग्रीन हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, रिबकेज एंड चेस्ट का एक्सपेंशन करता है। ये हमारे बैक की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों पर सिर रखकर विश्राम करें। आपको दोनों हाथों पर सिर को रखना है। इस आसन को करते हुए धीमी और गहरी श्वास लें। Imagine that the breath you're taking is going straight towards your tailbone. Direct your breath towards your tailbone. Take a deep breath. यह आसन पूरे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। स्ट्रेस फटीग को कम करता है और बैक पेन कम करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांति बनाता है। अब हम अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण आसन शवासन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि केवल लेट जाएं। दोनों हाथों और पैरों को आरामदायक करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अब धीरे धीरे अपने बॉडी के हर एक पार्ट को आप लूज छोड़ दें। अपना सर, अपना चेहरा, अपने कंधे, अपने हाथ, अपना चेस्ट एरिया, अपना पीठ, कमर, पैर, सबको धीरे-धीरे सांस लेते रिलैक्स, अनवाइंड योरसेल्फ। And exhale slowly. Let me do it a few more times. Take a deep breath. अपनी बॉडी को लूज छोड़ दें। शवासन की लाभ कुछ इस प्रकार है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स में कमी करता है और मानसिक शांति को सुधार करता है। साथ ही साथ ये स्मरण शक्ति में सुधार करता है। हृदय गति एवं ब्लड प्रेशर का संतुलन बनाकर रखता है और यह आसन स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप
धीरे धीरे अपने पैरों और कंधों को हिलाएं और अपने हाथों को हिलाएं। अब करवट लें और बैठने की स्थिति में आ जाए। आज आपने स्वयं को स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मिक शांति का अमूल्य उपहार दिया। योग हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, भावनात्मक परिपक्वता और आंतरिक शांति से निर्मित होता है। As we come to the end of this beautiful celebration, let us carry something more valuable than memories. Let us carry calmness. Let us carry clarity. Let us carry the promise that we will take care of ourselves, not only today, but every day. On behalf of entire Vedoverse family, I express my sincere gratitude to our respected Senior Vice President, Mr. Shiv Pandey, our esteemed AGM academics, Ms. Rishika Sharma, the respected Dynamic Principal, Ms. Shamim Singh ma'am, our dedicated teachers, staff members, and students whose participation made the celebration meaningful. Now, I would like to invite our respected principal ma'am to share her valuable words with us. Parents, children, staff members, members of management, wish you all a very happy the healthy philosophy and finding our independence. For our students, yoga enhances concentration, discipline, confidence, resilience, because of which we are going to integrate yoga as a plan of our daily activity. At Vedapur, we believe that true education goes far beyond excellence. It involves the development of a healthy body, focused mind, professional
heart. Yoga emotionally complements the position by helping our children grow into balanced and responsible beings. On this International Yoga Day, I encourage every member of our community to make yoga part of daily life. Even a few minutes of daily regular practice can make us benefits and positive life. Let us embrace yoga, not just as an activity, as a lifelong journey towards health, harmony, and happiness. And on that note, I would want to especially thank Team Victor School, all the teachers, the technical support, Harshit sir, Ashutosh sir, Samar sir, Mohit sir, who's been leading you for all these activities, Shubham sir, all of our staff members, colleagues sir, who are all there in the morning to make sure that you all join us on this hospital occasion. Looking forward to you all very soon. God bless you. Over to Harshit sir. Thank you. Thank you, ma'am. Your valuable words inspires us the most. Let us conclude with a timeless prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhave. May all be happy. May all be healthy. May all witness goodness and may none suffer. As you leave today, remember, yoga is not something we do for one day. Yoga is a gift we give ourselves every day. Thank you all for your enthusiastic participation. Stay healthy, stay mindful, and keep practicing yoga. Happy International Yoga Day. Have a wonderful day. Namaskar. Namaskar.